میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مختلف چیزوں سے لوگ نشہ کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ان لوگوں پر جنہوں نے صرف شراب کا ایک گھونٹ پیا ہوگا اتنا دردناک عذاب مسلط کیا جائے گا، جس کو حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا اور شراب کا ایک گھونٹ پینے کے بعد وہ توبہ کرنے سے پہلے پہلے مر گیا، جب اسے اس کی قبر میں رکھا جائے گا اور جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس حالت میں اٹھے گا، یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو اس کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا، اور جب وہ میدان محشر میں اٹھے گا تو اس پر اتنی پیاس مسلط کی جائے گی کہ اس کی پیاس کی وجہ سے اس کی زبان اس کے سینے پہ لٹک رہی ہوگی، وہ پانی پانی چلائے گا، وہ پیاس پیاس چلائے گا۔ جس وقت وہ پانی طلب کرے گا اسے جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ اور جہنمی بچھوؤں کا زہر پینے کے لیے دیا جائے گا۔ جیسے وہ اپنے منہ کے قریب کرے گا اس کے منہ کا گوشت، اس کے گالوں کا گوشت جھڑ جھڑ کر کے گرے گا۔ وہ کہے گا ہائے میرے ساتھ یہ کیا کیا جاتا ہے۔ اس وقت فرشتے اس سے کہیں گے کیا تو نے دنیا میں ایک گھونٹ شراب کا نہیں پیا تھا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن آج جو نشہ کیا جا رہا ہے، اکثر نشہ کرنے والے اب شراب سے نشہ کم کرتے ہیں۔ کوئی بھنگ سے نشہ کر رہا ہے، کوئی افیون سے نشہ کر رہا ہے، کوئی چرس سے نشہ کر رہا ہے، کوئی ہیروئن سے نشہ کر رہا ہے، کوئی ڈرگ سے نشہ کر رہا ہے۔ یہ سارے نشہ کے جو ہے جدید طریقے لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں۔ کوئی دوائیاں پی کر، کوئی گولیاں کھا کر نشہ کر رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب لوگوں کو بتایا جاتا ہے، جب لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ تم نشہ کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ جس نشہ کی ممانعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہم وہ نشہ نہیں کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس نشہ کی ممانعت تھی وہ شراب کا نشہ تھا، اب تو گولیاں کھائی جا رہی ہے۔ ہیروئن کا وجود جو ہے رسول اعظم کے دور میں نہیں تھا، کتا گولیوں کا وجود آقا کریم کے دور میں نہیں تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جہاں اپنے ظاہری زمانے پر تھی وہیں پر قیامت تک کے حالات پر تھی۔ میرے رسول نے قیامت تک کے ایجاد ہونے والی ساری برائیوں کو دیکھ لیا اور آقا نے ارشاد فرمایا کل مسکرین حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، جس سے بھی نشہ ہوگا وہ حرام ہی ہے اور اس سے نقصان ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہیروئن کے اندر اللہ اکبر ایسا کیمیکل ڈالا جاتا ہے کہ اللہ اکبر جس کی وجہ سے انسان کے پھیپڑوں کے اندر زخم ہو جاتا ہے اور وہ پھیپڑے پھٹنے لگتے ہیں۔ انسان کو جو ہے معدے کا کینسر اور منہ کا کینسر ہونے کے خطرات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ لوگ جو ہے نشے کی طرف جب بڑھتے ہیں تو ابتدا وہ سگریٹ سے کرتے ہیں اور سگریٹ سے ابتدا کرنے کے بعد پھر دھیرے دھیرے وہ بڑے نشے کی طرف جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سے لوگ جو نشہ کرتے ہیں اگر کسی کو پوچھا جائے تم نشہ کیوں کرتے ہو، کوئی کاروبار میں ناکامی کی بنیاد پر جب بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے، جب مضطرب ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ نشے کا عادی ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ دماغ کا ٹینشن دور کرنے کے لیے، دماغ کا بوجھ دور کرنے کے لیے، دل کا درد ہلکا کرنے کے لیے نشہ کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھو نشہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمارے دکھوں کا علاج شراب کے کڑوے گھونٹ میں نہیں، ہمارے دکھوں کا علاج ہیروئن اور ڈرگس میں نہیں، ہمارے دکھوں کا علاج بھنگ اور افیون کے اندر نہیں، ہمارے دکھوں کا علاج اگر ہے تو آئیے ذرا قرآن کی طرف آئیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں دکھوں کا علاج چاہیے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، اور اگر دلوں کو سکون چاہیے، دلوں کو قرار چاہیے تو میرے کریم نے
इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह हो जाओ, अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। दुनिया नशे की मुखालिफत तो कर सकती है, लेकिन नशे का हल पेश नहीं कर सकती। तन्हा इस्लाम वो मजहब है जो नशे का हल भी पेश करता है। अगर तुमने दिल के सुकून के लिए नशा किया है तो याद रखना, जिस दिन नशा उतरेगा दुख बढ़ते चले जाएंगे, दर्द बढ़ता चला जाएगा, टेंशन बढ़ता चला जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र से मिलता है। अल्लाह का जिक्र करते चले जाओ, दिलों को सुकून मिलता चला जाएगा। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जिनको हिब्रुल उम्मा कहा गया है, उनसे पूछा गया, ये बताएं कि अल्लाह के जिक्र से मुराद क्या है। आया करीमा में करीम ने फरमाया कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है। अल्लाह का जिक्र क्या है? हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, जिक्रुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम है। उनके कदमों के करीब होते चले जाओ, तुम्हारे दिलों को सुकून मिलता चला जाएगा। इसीलिए तो बरेली के ताजदार कहते हैं, दिलों को आराम चाहिए तो अल्लाह अकबर। वो फरमाते हैं, अपने दिल का है उन्हीं से आराम सौंपे हैं, अपने उन्हीं को सब काम। लो लगी है कि अब उस दर के गुलाम चारे दर्द रजा करते हैं। अपने दर्द का इलाज भी वही है, अपने दुखों का इलाज भी वही है। कारोबार में नाकाम होने वाले नशा करते हैं। अक्सर जवान जो नशा कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? उनकी अक्सरियत का जायजा लें तो वो इसलिए नशा करते हैं कि उन्होंने किसी लड़की से दिल लगाया था, उन्होंने किसी के जुल्फ रुखसार की असीर इख्तियार की थी और वहां धोखा होने की वजह से अब उन्होंने सोचा जिंदगी गुजारे तो कहां गुजारे, तो नशा करने वालों की महफिल के अंदर बैठ गए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब इसका इलाज क्या है? अगर कोई इस तरह नशा करता है कि मोहब्बत में नाकामी हो गई, इश्क में नाकामी हो गई, तो कश लगाने वालों के साथ बैठ गए, नशा करने वालों के साथ बैठ गए। सुन लो, अगर किसी से दिल लगाना है तो किसी के जुल्फ रुखसार से दिल न लगाओ। मेरे करीम के इल्म में ये बात है कि मैंने अपने बंदों को दिल दिया तो कोई हुस्न भी चाहिए, कोई दिलदार भी चाहिए, कोई दिल का मालिक भी चाहिए। तो मेरे करीम ने हमें आवारा नहीं छोड़ दिया, हमें बेहरा रवि का शिकार नहीं छोड़ दिया। दिल को हुस्न पसंद है, दिल की फितरत मोहब्बत है, दिल की फितरत इश्क है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दिल वालों के लिए ऐसा दिलदार पैदा किया कि जिसको हुस्न यूसुफ भी टिकटिकी बांध करके देखता है। क्या हुस्न है? ऐसा जदी अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। ओ इश्क में नाकाम होने वालों, वो इश्क ही क्यों करते हो जिसमें नाकामी हो? वो इश्क की तरफ ही क्यों जाते हो जहां धोखा दिया जाता हो? अरे जहां महबूब बेदर्द हो तो ऐसे से भी मोहब्बत की जाती है, जहां महबूब ही बेदिल हो ऐसे से भी इश्क किया जाता है। आओ उसके इश्क की तरफ, आओ उसकी मोहब्बत की तरफ, जिस इश्क में कभी नाकामी नहीं है। वो इश्क एक काले रंग के बिलाल को मिलता है तो वो इतना बुलंद हो जाता है कि काबा उसके कदमों के नीचे आ जाता है। उस इश्क की तरफ क्यों जाते हो जहां तुम्हारे आंसुओं की कदर नहीं? आओ उस इश्क की तरफ चलते हैं। तुम सोते हो और वो महबूब रातों को तुम्हारे लिए रोता है, तुम हंसते हो और वो रो रो कर आंसू गिरा गिरा कर आंसुओं की सौगात पेश पेश करके अल्लाह तबारक व तआला की जहन्नम की आग को ठंडा करने की कोशिश करता है। आओ तो उस महबूब की तरफ जिसकी मोहब्बत में नाकामी नहीं। बच्चा करे तो कामयाब हो जाए, जवान करे तो कामयाब हो जाए, बूढ़ा करे तो कामयाब हो जाए, मर्द करे तो कामयाब हो जाए, औरत करे तो कामयाब हो जाए। अरे जब हाँ
उसी मदीने के दिलदार से अगर कोई इश्क करता है, अगर ओवैस करते हैं तो अपने वक्त के सैयदुत ताबईन बन जाते हैं। औरतों में अगर छोटे कद की काले रंग की कोई औरत राबिया की शक्ल में करती है तो उसका मर्तबा इतना बुलंद हो जाता है कि जब वो हज के लिए घर से निकलती है तो काबा उसके इस्तिकबाल के लिए चला आता है। आप अंदाजा तो फरमाएं इश्क रसूल कितनी बुलंदी अता करता है। लोगों के पास नशे के खिलाफ तकरीरें तो हो सकती है, नशे के मुखालिफत में नारे तो हो सकते हैं, लेकिन उसका इलाज नहीं, इसलिए कि अहले हुस्न के लिए मेरे रब ने हुस्न भी पैदा फरमाया है। अहले इश्क के लिए मेरे करीम ने ऐसा जलवा पैदा किया है, खुदा की कसम वो जलवा भी कैसा जलवा होगा कि जिसको बनाने के बाद खुद ही प्यार से 100 मर्तबा तकता है। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा तो फरमाए, बल्कि उस जलवे को ही नहीं तकता जो आंखें उस महबूब का दीदार करती है, खुदा उस आंखों को भी तकता है। इमाम फरमाते हैं खुदा उनको किस प्यार से देखता है जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हमारे जो नौजवान इश्क में नाकाम होकर के नशे की तरफ जा रहे हैं, सुन्नी दावत इस्लामी का पैगाम है किसी के जुल्फ रुखसार की बात न करो, आओ उसकी जुल्फों की बात करो जिसकी जुल्फों को खुदा वल्लैल कहकर उसकी कस्में याद करता है। और अगर वही जुल्फी जब सवर जाती है तो खुदा उसे वद्दुहा कहता है और उनके रुखे वद्दुहा की कसम याद करता है। आओ उसी से मोहब्बत करें जिसकी मोहब्बत की दावत मेरे अल्लाह ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। क्या आपने नहीं सुना? मुआरिजुन नबूवा में है, अल्लामा मुईनुद्दीन फरमाते हैं अल्लाह ने हजरत मूसा से फरमाया, ऐ मूसा क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी जबान से तुम्हारा कलाम जितने करीब है उससे ज्यादा मैं तुम्हारे करीब हो जाऊं? तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी जान जितनी करीब है उससे ज्यादा मैं तुम्हारे करीब हो जाऊं? तुम्हारी आंखों से तुम्हारी निगाह जितनी करीब है उससे ज्यादा मैं तुम्हारे करीब हो जाऊं? जनाबे कलीम कहते हैं मौला क्यों नहीं, यकीनन मैं यही चाहता हूं कि तू मेरे करीब हो जा, मैं तेरे करीब हो जाऊं। तो इरशाद हुआ मूसा उससे इश्क कर ले जिससे मैं भी मोहब्बत करता हूं। पूछा वो कौन है जिससे तू मोहब्बत करता है? इरशाद हुआ वो आमिना का लाल मोहम्मद है जिससे मैं मोहब्बत करता हूं। मोहब्बत रसूल की दावत, मोहब्बत रसूल की दावत अल्लाह अपने नबियों को देता है। हालांकि वो सब मोहब्बत करने वाले थे, तो नशे के अंदर लोग मुब्तला हैं इसलिए कि इश्क में नाकाम हो गए। नादान उस पागलपन की तरफ क्यों जाता है जो तुझे तबाह करता है? उसकी तरफ क्यों जाता है जिसे तेरे आंसुओं का ख्याल नहीं? अल्लाह अकबर। मेरे रसूल तो अपने आशिकों को भी जानते हैं, उनके बाप के नाम के साथ जानते हैं, उनके बुरे आमाल देखकर उनके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं, उनके अच्छे आमाल देखकर उनसे खुश होते हैं। आप गौर तो फरमाएं, लोग नशे की तरफ जा रहे हैं। आकाए करीम के दीवानों, ये नशा क्या है? अल्लाह अकबर। ये इस्लाम दुश्मन ताकतों की साजिश है। जब अंदलुस की सरजमीन पर तारिक इब्ने जियाद ने इस्लाम का परचम लहराया तो उन लोगों ने उस मुल्क को मुसलमानों से वापस लेना चाहा। तो सोचा कि मुसलमानों से हम तलवारों के बल पर मुल्क को वापस नहीं ले सकते। तो क्या किया? उन्होंने नशे को आम किया उस मुल्क में और मुस्लिम जवानों को नशे का इतना आदी बना दिया कि जब मुसलमान शराब व शबाब में डूब गए तो जिस मुल्क को वो तलवार और ताकत के बल पर वापस नहीं ले सकते थे, उन्होंने सिर्फ मुसलमान जवानों को नशे में गिरफ्तार करके उस मुल्क को वापस लिया। आप क्या समझते हो हमारे साथ ये साजिश की जा रही है? मुस्लिम अक्सरियती इलाकों के अंदर नशे को जो है वो आम किया जा रहा है, नशीली दवाओं को आम किया जा रहा है ताकि बच्चा बच्चा नशे के अंदर मुब्तला हो जाए। और लोग नशे में जो गिरफ्तार होते हैं उसकी वजह ये भी है कि अल्लाह अकबर, जो नशा करने वाले लोग हैं उनकी सोहबत में बैठ
जब बैठने वाला जब बैठता है तो फिर उसको भी नशे का शौक होता है। इसलिए वालिदैन की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई नशा करने वाला मोहल्ले में हो तो हम अपनी औलाद को उसके करीब न बैठने दें, उसकी सोहबत इख्तियार करने न दें। इसलिए कि सोहबत इंसान को बनाती भी है, सोहबत इंसान को बिगाड़ती भी है। नशा करने वाले पहले अपनी जेब से लोगों को नशा करवाते हैं। वो जानते हैं जिस दिन ये नशे का आदी हो गया फिर ये अपनी जेब से हमें नशा करवाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, 12-12, 15-15 साल के बच्चे नशे के अंदर डूब रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, बुरी सोहबत से बचाओ। अगर अपने बच्चों को बुरी सोहबत से बचाकर नेक सोहबत की तरफ लाना चाहते हो तो सुन्नी दावत इस्लामी के करीब करो, आपका बच्चा नेक बनेगा। जानते हैं शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं गुस्ल कर रहा था, मैंने मिट्टी को अपने बदन पे मलना शुरू किया, मिट्टी से गुलाब की खुशबू आई। मैंने मिट्टी से पूछा, ए मिट्टी बता तुझमें गुलाब की खुशबू कैसे पैदा हो गई? तू तो मिट्टी है, महकना तेरा काम नहीं, महकते तो गुल किया करते हैं, लेकिन तू किस तरह महक रही है? तो मिट्टी ने जवाब दिया कि ऐ सादी, मैं चंद दिन गुलों की सोहबत में रही, उनकी खुशबू मेरे अंदर भी बस गई। पता चला अगर नेकों की सोहबत में इंसान रहता है तो नेकियों के असरात पैदा हो जाते हैं। इसलिए जुआरियों के, शराबियों के, चोर और डकैती करने वालों के साथ अपने बच्चों को हरगिज न रखो।